Hello everyone. Today again I am here with the new topic of the Chishti tradition, that is Sufis and the Sant. So let's start with the topic, page number 159. A major feature of the Chishti tradition was austerity. Austerity means severe or strict in the manners and attitude. So this Chishti tradition was, these Chistis were very Sufi sons of this Chishti tradition. They were very strict in their manners and in their traditions, like maintaining a distance from worldly power. They wanted to maintain their distance from the all these worldly powers, means ये दीन दुनिया के जो दुख सुख हैं इन सब से they wanted to keep distance, and even they wanted to keep distance from the political power also. They did not want any political power ever. However, this was by no means situation of absolute isolation from political power. It doesn't mean that ki this was by no means a situation of absolute isolation from political power. It doesn't mean that ki they were very keep themselves totally away from the political power, but they did not like these political powers. The Sufis accepted unsolicited. Unsolicited मतलब without asking. विदाउट आस्किंग मतलब बिना मांगे उनको ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते थे फ्रॉम द पॉलिटिकल इलिट्स, मीन्स फ्रॉम द रूलर्स एंड फ्रॉम द courtiers. The sultans in turn set up the charitable trust, and even the sultans set up the charitable trust for these people, for the for these people, and even the endowments for hospices. Endowments means land grants देते थे उनको hospices बनाने के लिए. Hospices means, as I told you, that it's a center where they were treating the sick people. We can say that nowadays how we are saying hospital, so that way that time that was the place where they were treating the sick people, the Sufi sons. So they were also giving them the charity for the charitable trust also they set up, and even they have given the land endowments them also, and granted tax free land also. And which land they have given, that was no tax was collected from that land also. So Chishtis accepted donations. They were accepting this donation both in cash also and in kind also, means like in the land, in the form of land. Cash means in the form of money. So rather than accumulating donation, they were not collecting this donation, इकट्ठा करके नहीं रखते थे donation अपने पास, but as soon as they get the donations they were using it which are the immediate requirement, जिसकी उसी वक्त ज़रूरत होती थी जिस चीज़ के ऊपर उसको खर्च करने की, they were spending on it, like to provide food to the people, clothes, living quarters, अगर घर रहने के लिए बनाने हैं लोगों के आने जाने वालों के लिए, that was. And even the rituals मतलब जैसे आजकल हिंदूज जागरण करवाते हैं और पूजा पाठ होती है हिंदुओं में, उसी तरह से ही दिस सूफीज़ वर आल्सो कंडक्टिंग द समा. दैट वाज जस्ट लाइक वी कैन से दैट जागरण की तरह कि होल नाइट दे वर जस्ट अवेकन एंड देन दे वर सिंगिंग द सूफी दिस सॉन्ग्स, एंड इवन द कवालीज वर संग होल नाइट. ऑल दीज एनहेंस द मॉरल अथॉरिटी ऑफ द शेख्स. इस सब से क्या होता था, जितना ये काम लोगों के लिए करते थे उनकी सोशल सर्विस के लिए, सो अथॉरिटी उतनी ही शेख्स की डे बाई डे इट इंक्रीज्ड. विद इन द टर्न अट्रैक्टेड पीपल, और बहुत सारे डिफरेंट वॉक के लोग, डिफरेंट स्ट्रेटा के लोग, चाहे वो किसी भी स्टेटा से, चाहे हिंदूज थे या कुछ भी थे, वो इस धर्म की तरफ, इस सूफिज़म की तरफ वो अट्रैक्ट होते गए. एंड फर्दर देयर पाइटी एंड स्कॉलरशिप. पाइटी मतलब उनकी प्योरनेस, उनकी स्कॉलरशिप, और उनकी जो वी कैन से दैट वेरी एक्सपीरियंस ऑफ दी सूफी सन्स, एंड पीपल्स बिलीव एज देयर मिराकुलस पावर्स. और इनके पास, इन लोगों को ऐसे लगता था कि इनके पास कुछ मिराकुलस पावर्स आर देयर विच आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ईविल. सो हु सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर. और इसीलिए वो लोगों से, इनके साथ एसोसिएट होकर लोगों का सपोर्ट गेन करना चाहते थे रूलर्स. सो दैट इज़ वाई दे वर ऑलवेज की एसोसिएटिंग विद द सूफीज़, जो किंग्स हुआ करते थे. एंड किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोस्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफी. सिर्फ वो अपने आप को अपनी एसोसिएशन सूफीज़ के साथ ही नहीं डेमोस्ट्रेट मतलब दिखाना चाहते थे लोगों को, बट दे आल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम दैम. बट वो ये भी चाहते थे कि जो भी वो इनके सपोर्ट के लिए, मासस के सपोर्ट के लिए, मतलब अपनी प्रजा के सपोर्ट के लिए जो इनकी पावर, इनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, इनके साथ इकट्ठे हो, इनके साथ मतलब लगकर काम कर रहे हैं, इनको चैरिटेबल ट्रस्ट बना के दे रहे हैं, तो वो चाहते थे कि इनको भी लीगल सैंक्टिटी, मतलब लीगल वैधता जिसको हम कह देते हैं, कि लीगली वैलिडिटी भी मिल जानी चाहिए इनकी एसोसिएशन को सूफीज़ के साथ. फाइन. सो व्हेन द तर्क सेटअप द दिल्ली सुल्तानेट, दे रेसिस्टेड मतलब दिल्ली सुल्तान्स ने जब ये अपना, टर्कीज़ ने दिल्ली सुल्तानेट जब इस्टेब्लिश किया, सो रेसिस्टेड मतलब उन्होंने अपोज़ किया था. उलेमाज आपको मैंने बताया था, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं शरिया रूल्स के, उनको उलेमा कहते हैं. और ये उलेमाज हेल्प करते थे सुल्तान को कोई भी रिलीजन से रिलेटेड डिसीज़न लेने में. सो
इन टर्कीज़ ने इनके जो इंसिस्टेंट था, मतलब इन्होंने जो उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि इम्पोज करो शरिया स्टेट के ऊपर, कि शरिया को एक स्टेट लॉ बना दो कि जो भी उनकी स्टेट में रहेगा उसको रिलीजियस टैक्स फिल करना पड़ेगा, मतलब डिपॉजिट करना पड़ेगा, बिकॉज दे एंटिसिपेट। अब ये तुर्की ने ये करने से मना कर दिया था, उलेमास के इस बात का उल्लंघन किया, उन्होंने उसको माना नहीं, बिकॉज दे उनको पहले से ही पता था कि अगर उन्होंने ऐसा कोई टैक्स लोगों पे इम्पोज किया, बिकॉज उनकी किंगडम में नॉट ओनली द हिंदू पीपल, मुस्लिम पीपल वर देयर, बट द डिफरेंट रिलीजन पीपल वर देयर, सो दैट इज़ वाई दे, उनको पता था कि अगर वो ऐसा कोई टैक्स करते हैं तो द पीपल विल गेट अगेंस्ट दैम। सो द मेजॉरिटी ऑफ होम वर नॉन मुस्लिम। रीज़न ये था क्योंकि उसकी किंगडम्स में मेजॉरिटी पीपल जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे। एंड सुल्तान्स देन सॉर्ट आउट द सूफीज़ हु डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। और इसके लिए वो किसकी हेल्प लेते थे? सूफी संतों की, क्योंकि सूफी संत किसी भी आइडल में वर्शिप नहीं करते थे, एंड दे डायरेक्टली दे वर सेइंग दैट कि गॉड इज़ वन, दे वर नॉट बिलीविंग इन एनी ऑफ द टाइप ऑफ गॉड। सो दैट इज़ वाई ऐसी चीज़ों को कभी भी जब उलेमास के किसी भी बात को उनको अपोज करना होता था तो वो हमेशा सूफीज़ का सपोर्ट लेते थे। सूफीज़ उनको ये क्लियर करके देते थे बात को कि क्या यहाँ पर नहीं ज़रूरत है इस शरिया लॉ की, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन जूरीज टू इंटरप्रेट द शरिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो जूरी है, जो उलेमा जो थे, जूरी होती है ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब स्कॉलर्स जो डिसीज़न लेते थे रिलीजन से रिलेटेड। सो उनको ये लगता था कि अगर सूफीज़ सॉर्ट आउट कर दें इस मैटर को तो कोई ऐसी जूरी की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे शरिया लॉ को आगे करने के लिए। सो बिसाइड्स इट वॉज बिलीव दैट कि औलियास कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। ये बिलीव था लोगों का कि जो ये औलिया होते हैं, इनको औलिया भी कहते हैं बेटे सूफ़ी संतों को, कि ये जो औलिया होते हैं कि ये बिहाफ ऑफ द गॉड यहाँ पे अर्थ पर आए हुए हैं और ये अपनी मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल अपनी पावर्स के साथ ऑर्डिनरी लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई। और यही एक रीज़न था कि जो किंग्स थे वो चाहते थे कि जब वो मरे तो उनकी जो कब्र है वो इन सूफ़ी संतों की जो श्राइन्स है ना, हॉस्पिसेस है, उसके बिल्कुल पास के एरिया में बनाई जाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और ये भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं, कि अगर उनके मरने के बाद उनकी कब्र भी इनके उस एरिया के पास ही उन श्राइन्स होती है जो जैसे दरगाह कह लो, है ना, मॉस्क कह लो। सो अगर इन सूफ़ी संतों के आसपास कहीं इनकी उन दरगाह के पास भी आसपास कहीं इनकी टोम बन जाएगी तो इनका जन्म सफल हो जाएगा, ये उनका मानना था रूलर्स का। एंड हाउएवर देवर इंस्टेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड सूफी। वो कहते कि कोई ज़रूरी नहीं कि तुर्की जो ये रूलर्स थे इनका बहुत अच्छे कनेक्शंस थे इनके सूफीज़ के साथ, कई बार इनके आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो जाया करते थे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी अथॉरिटी को सुपीरियर बताते थे, दोनों ही अपनी अपनी अथॉरिटी को लोगों से मनवाना चाहते थे टू असर्ट देयर अथॉरिटी। सो दे बोथ वांटेड दैट कि सर्टन रिचुअल्स, वो चाहते थे कि कुछ रिचुअल्स है जो उनके लिए परफॉर्म किए जाएं, जैसे प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू ले डाउन ऑन द ग्राउंड, कि पूरा लेट कर उनको प्रणाम किया जाए टू द सूफी संत आल्सो, एंड द सुल्तान आल्सो वांटेड द सेम। और कई ऐसे चाहते थे कि किसिंग द फीट, कि उनके पैरों को किस किया जाए टू शो द रिस्पेक्ट। सो ओकेजनली द सूफ़ी शेख वॉज एड्रेस्ड, इवन द सूफ़ी शेख जो होते थे उनको एड्रेस किया जाता था बड़े हाई फाई टाइटल के साथ, जैसे डिसाइपल्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, उनको एड्रेस किया जाता था सुल्तान उल मशेक। सुल्तान उल मशेक, सुल्तान उल मशेक मतलब सुल्तानों के, शेखों का सुल्तान मतलब शेखों का राजा। सो इस तरह से ये डिफरेंट जो उनके लिए यूज़ किए जाते थे वर्ड्स, सो इससे उनकी अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी लोगों से मनवाते थे, उनको ये बताते थे कि वी आर अथॉरिटेटिव, मतलब हमारी भी अथॉरिटी है सोसाइटी में। सो लेकिन दीज पीपल लाइक हेयर इट इज़ गिवन वन ऑफ द ब्लू बॉक्स इन विच इट इज़ रिटन डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट। सो इसका ये मतलब है कि ये जो औलिया हुआ करते थे सूफी संत, दे डिड नॉट, वी कैन से दैट दे वर नॉट ग्रीडी, दे वॉन्टेड मनी बिकॉज दैट मनी दे वर, इसका पूरे मैं समरी बता रही हूँ बेटे आपको, कि दे डिड नॉट वांट बिकॉज वंस वन रूलर हैज़ सेंट अ गिफ्ट ऑफ मनी एंड आल्सो two gardens, so that Aulia had refused to accept that gift because he said that ki this is nothing for me and what these things will be benefit to my people, those who are, because they are not doing this type of work, because they are wanderers and they are wandering from place to place to preach the people, what they will do with these gardens and these all gifts वगैरह. So these type of two instances are given. Once Ghiasuddin has given the money and also some land grants also to one of the sheikh,
तो शेख हैज़ kept that money because he said that money I can spend on my all these Sufi sons and Sufi darwesh जो उनके disciples हैं, but what I will do with the land because I'm not cultivating the land. So we can't say that कि they were having very good connections also. Sometime उनको इन्हीं matters को लेकर उनके बीच में conflict भी हो जाया करते थे. So now let's see the next topic, that is new devotional paths, dialogue and dissent in northern India. So यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं new topic की, so we will see that dissent means holding or expressing of opinions at varied with those dominating held, means those who were among the held. So dissent का मतलब होता है holding और expressing opinions. Fine. सो न्यू डिवोशनल पास, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, कि कैसे वो अपने ओपिनियंस को, डिसेंट का मतलब होता है ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, कैसे उन्होंने डायलॉग्स के थ्रू या किस तरह से उन्होंने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया. सो मैनी पोएट्स एंड एंगेज्ड इन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. सो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बहुत क्लियरली और डीपली किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना ताकि कोई उसमें गुंजाइश ही न रहे किसी कन्फ्यूजन की या किसी डाउट्स की, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट. और इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू, जस्ट यू आर गिविंग सजेशन बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग एनीथिंग. ठीक है. सो एक्सप्लिसिट का मतलब इतनी क्लियरली एक्सप्लेन कर देना कि कोई उसमें डाउट ना रहे, और इम्प्लिसिट का मतलब सिर्फ सजेस्ट करना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना. सो ये जो पोएट सेंस हुए हैं, मतलब पोएट कवि संत हुए हैं जो, दे एंगेज्ड इन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, दोनों तरह के डायलॉग. कई ऐसी चीज़ें होती थी जिसको बहुत वो डीपली डिस्कस करते थे, कई ऐसी चीज़ें होती थी जिसको सिर्फ सजेस्ट ही करते थे, दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग इट. इस तरह से उनके आइडियाज़ इंस्टीट्यूशंस में ये डिबेट्स हुआ करते थे. एंड लेट अस नाउ सी हाउ दिस डायलॉग फाउंड एक्सप्रेशन, कि इनके डायलॉग्स को एक्सप्रेस कैसे किया गया आगे जाकर. सो इससे सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी the three people here. One, we are going to see study about Kabir, then we are going to study about Guru Nanak Dev Ji, and third we are going to talk about Mirabai. So let's see first about Kabir. So when we were talking about Kabir, so we will see that ki what Kabir Ji story was. So Kabir Ji was in 14th to 15th centuries, is perhaps one of the most outstanding examples ऑफ अ पोएट्स, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द संत कवि का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है इनको, बहुत बड़े संत कवि माना जाता है इनको, जो संत भी थे और कवि भी थे, हु एंड एमर्ज्ड विद इन दिस कंटेक्स्ट, एंड सूफीज़म में भी आते हैं वो. हिस्टोरियंस हैव पेनस्टेकिंगली ट्राइड, पेनस्टेकिंग मतलब बहुत पेन, लेकिन दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट हिज लाइफ एंड टाइम्स थ्रू अ स्टडी ऑफ कंपोजिशन. जो भी उन्होंने कंपोजिशंस लिखे हैं उसको समझकर हिस्टोरियंस ने बहुत ज़्यादा पेन लिया है उनकी लाइफ को समझने के लिए. एंड वर्सेस एस्क्राइब टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस. सो उसमें इस कबीर बीजक एक उनकी बुक का नाम है जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें उनके सारे दोहे जो हैं वो कंपाइल किए गए हैं. दूसरी है कबीर पंथ, मतलब इसको प्रिजर्व किया गया है कबीर पंथ वालों ने, जो कबीर जी को मानते थे, उनकी वाणी को मानते थे, उनको कबीर पंथी कहते हैं. और ये रहते थे वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे पार्ट्स थे जिसमें ये कबीर पंथी लोग रहते थे. एंड कबीर ग्रंथावली भी एक बुक है उनकी, जिसमें उनके सारे दोहे कंपाइल किए गए हैं. एल्सवेयर इन ये ग्रंथावली जो एसोसिएट करती है दादू पंथ है राजस्थान में, ये भी कबीर जी को मानते हैं और इसके ट्रेडिशन को कहते हैं दादू पंथी राजस्थान में. एंड मैनी ऑफ हिज कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं आजकल, उनको पहले स्टार्टिंग में कहा जाता था आदि ग्रंथ साहिब. सो उसमें भी कबीर जी के दोहे बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे उसमें प्रिजर्व किए हुए और उसमें मेंशन किए हुए हैं. एंड ऑल दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशन, जितनी भी ये लिखी गई हैं ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हाथों से लिखी गई हैं. फाइन. ये कबीर बीजक है, चाहे कबीर ग्रंथावली है, और इवन आदि ग्रंथ साहिब भी इट्स मतलब हैंड रिटन. सो ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशंस वर मेड बहुत टाइम बाद, कबीर जी की डेथ के बाद ये सारी कंपाइल की गई. एंड बाय द 19th सेंचुरी एंथोलॉजीज़ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कंपाइल करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, मतलब जैसे एल्बम बनाते हैं ना सॉन्ग्स की, सेम वे ओनली इन दोहों की जो एल्बम बनाई गई थी उसको कहते हैं एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस. दिस एट्रीब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड इन प्रिंट, फिर बाद में इसको प्रिंट किया गया और प्लेस टू प्लेस लाइक बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब सर्कुलेट किया गया. कबीर्स पोएम्स हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, इनकी पोएम्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है और बहुत सारी लैंग्वेजेस, और उसमें सब लैंग्वेजेस आगे जाकर. एंड सम जैसे लैंग्वेज हम कहते हैं संस्कृत, अब संस्कृत में आगे देवनागरी भी है, हम कहते हैं उसको भोजपुरी भी है, बिहारी भी है. सो ये कहती हैं डायलेक्ट्स. ठीक है. लैंग्वेज होती है जैसे संस्कृत, और उसके आगे जो उसकी सब भाषा बन जाती है उसको हम कहते हैं डायलेक्ट्स. ठीक है. सो सम आर कंपोज्ड इन द स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ
निर्गुणा पोएट्स कल मैंने आपको बताया था, जो किसी भी आइडल में विश्वास नहीं करते, और उनका ये कहना है कि भगवान को वो एक निरंकार के रूप में, मतलब कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे जो सगुण वाले हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, लेकिन जो निर्गुण वाले हैं वो किसी आइडल को वर्शिप नहीं करते हैं, ठीक है। सो अदर्स नोन एज उलट बंस मतलब अपसाइड डाउन सेइंग, मतलब उनका ये कहना है, एक तो होती है निर्गुणा पोएट्स, द सनी भाषा, जिनका मतलब होता है संतों की भाषा, ठीक है, और एक होती है उलट भाषा, मतलब जो संतों की भाषा में नहीं बल्कि नॉर्मल भाषा में लिखा जाता है, अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम लिखते हैं ना आजकल, उसको कहते हैं उल्ट बर्ड्स। सो दीज आर रिटन इन अ फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड, जिसमें कि हर दिन की जो भी बातें होती थी वो उसमें वो कन्वर्ट कर, मतलब उसमें वो मेंशन करते रहते थे, मतलब उसको नोट करते रहते थे। दीज हिंट्स ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ कैप्चरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन वर्ड्स, और उनका कोई भी जो कबीर हुए हैं चाहे कोई भी संत हुए हैं, सबको यही था कि वो अल्टीमेट रियलिटी पता करना चाहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, कि ये जो लोटस है वो कैसे ब्लूम करता है विदाउट फ्लावर, कि वो तो फ्लावर नहीं है ना, वो पहले से ही कैसे ब्लूम करना शुरू कर देता है। एंड इवन द फायर रेजिंग इन द ओशन, मतलब आपको पता है ओशन में अगर फायर लगती है ना, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह गिरा होता है, तो ओशन की वो जो फायर है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा वायलेंटली मूव करती है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो इनकी कबीर जी की भी जो वाणी है वो भी इसी तरह से अल्टीमेट रियलिटी को बताती है, कि जैसे किसी लोटस का फूल है उसको खिलने के लिए जैसे कहते हैं कि ब्लॉसम ब्लूम करता है वो, लेकिन वो दूसरे फ्लावर्स की तरह नहीं होता है, उसमें खुशबू नहीं होती है, ठीक है। सो उसी तरह से वो कहते हैं जो ओशन की फायर होती है वो भी दूसरी फायर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो उसी तरह से कबीर जी की वाणी भी बिल्कुल डिफरेंट मानी जाती है। आल्सो स्ट्राइकिंग इज द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ड्रू ऑन टू द डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एंड दिस इंक्लूड्स इस्लाम आल्सो। उन्होंने सिर्फ हिंदुज़म के बारे में नहीं लिखा है बल्कि उन्होंने इस्लाम के बारे में भी लिखा है। उनकी वाणी में हिंदुज़म और इस्लाम दोनों के ही आपको देखने के लिए मिलेगी। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, उन्होंने क्या बताया कि जो अल्टीमेट रियलिटी, जो सत्य है, अंतिम सत्य जो है वो कौन है, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, एक ही भगवान के नाम है ये। ही ऑल्सो यूज्ड टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वेदास, दैट इज़ जैसे अलग, जिस अलग का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, निरंकार जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई आकार नहीं होता, देन ब्राह्मण, आत्मा, इस तरह के वर्ड भी उन्होंने यूज़ किए हैं जो कि वेदा से लिए गए हैं। तो उससे देखकर लगता है कि उनकी जो वाणी है उसमें आपको दोनों तरह के धर्मों की जो टर्म्स है वो उन्होंने उसमें यूज्ड किए हैं। सो नाउ लेट्स सी दैट और उनके बारे में हमें क्या नॉलेज मिलती है, क्या हम उनके बारे में समझ सकते हैं। सो उसमें वी कैन सी दैट कि डाइवर्सेस एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम्स। कई बार उनके जो आइडियाज़ थे ना वो कन्फ्लिक्टिंग भी होते थे जो अपनी पोएम्स में लिखते थे। सम पोएम्स ड्रॉ ऑन इस्लामिक आइडियाज़, कुछ उनकी पोएम्स ने इस्लामिक आइडियाज़ के ऊपर लिखा है। एंड यूज़ मोनोथिज़म का मतलब होता है जो वो लोग वो प्रैक्टिस जिसमें कि द पीपल बिलीव दैट द गॉड इज़ वन, ठीक है। एंड आइकोसियाज़म का मतलब होता है कि वो लोग, दैट टर्म जिसमें कि दे रिजेक्ट द आइडल, जो रिजेक्ट करते हैं इमेजेस को, ऐसे रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे रिलीजन को वो रिफ्यूज़ करते हैं जिसमें आइडलिज्म का यूज़ होता है। मोनोथिज़म वो प्रैक्टिस है जिसमें ये माना जाता है कि गॉड इज़ वन। एंड आइकोनोसियाज़म का मतलब होता है कि द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेजेस, मतलब जो रिजेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसेस हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं प्रैक्टिसेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के चल रहे हैं वो उन पे अटैक करते हैं। और वो अटैक क्या था, हिंदू पॉलीथीज़म पर। हिंदू पॉलीथीज़म मतलब एज हिंदूज़ में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस थे और उनकी आइडल वर्शिप भी की जाती थी, मतलब उनकी मूर्तियों की पूजा भी की जा सकती थी। तो कबीर जी ने मोनोथीज़म के ऊपर भी यूज़ किया है, आइकोनिज़म को भी किया है, और उन्होंने साथ में अटैक किया है हिंदू पॉलीथीज़म के ऊपर भी, कि जो हिंदुओं में बहुत सारे धर्मों में, मतलब हिंदुओं में जो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। अदर्स यूज़ द सूफ़ी कंसेप्ट, और कई ऐसे हैं उन्होंने कई सूफ़ी कंसेप्ट भी यूज़ किए हैं, जैसे जिक्र वर्ड जो है वो सूफ़ीज़म में आता है। इश्क जिसको हम लव कहते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रैक्टिसेस लिखी हैं। फिर उन्होंने हिंदू प्रैक्टिस जो है जिसमें कहते हैं कि नाम सिमरन करो, नाम सिमरन मतलब भगवान का नाम रिमेंबर करो, मतलब उनको सिमरन करो, मतलब उनको रिवाइज करो भगवान के नाम को। सो उनका ये कहना है कि वर ऑल दिस कंपोज्ड बाय कबीर जी। क्या आपको लगता है कि ये सारे सूफीज़म और जो ये सारे आइडियाज़ हैं क्या कबीर जी ने कंपोज किए हैं? वी नेवर बी एबल टू टेल विद सर्टिनिटी, कहते श्योरिटी से तो हम कभी भी नहीं बता सकते कि ये जितना वो कह रहे हैं इस्लाम में भी लिखा है, वेदों के बारे में भी लिखा है, तो क्या वो उन्होंने लिखा है, कोई भी सर्टिनिटी से नहीं कह सकता।
क्योंकि ऑल दो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एनालाइज द लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, स्टाइल लिखा है, उनका कंटेंट जो है जो उन्होंने लिखा उसको उन्होंने समझ कर और उसको पढ़कर और उसको समझने की कोशिश की है. एंड वट दिस रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेज आल्सो सिग्निफाइज इज दैट कबीर वॉज एंड इज टू बी प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु क्वेश्चन एट्रेंच रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. और उन्होंने कहा कबीर जी ने उन सारी ईविल सोशल ईविल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी अटैक किया है जो हमारे सोसाइटी में उस समय में कई सामाजिक बुराइयां चल रही थी ना, उसके ऊपर भी. वो कहते हैं कि भगवान तो दिल के अंदर होता है, उसको बाहर जो घूम घूम कर ऊंचे ऊंचे गाकर मंदिर में या फिर मस्जिद में जो ऊपर आप खड़े होकर अजान करते हो जोर जोर से, कहते हैं भगवान को ऐसे अजान करके बुलाने की जरूरत नहीं है. वो तो आप घर में बैठकर अगर अपने आप बैठकर भी पढ़ते अपने अंदर ढूंढो तो भगवान तो आपके अंदर ही है. सो इस तरह के विचार थे उनको. उन्होंने अटैक सिर्फ हिंदुइज्म पर नहीं किया बल्कि इस्लामिक आइडियाज़ पर भी किया. जस्ट एज कबीर आइडियाज़ प्रॉबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग्स, जिस तरह से कबीर जी के आइडियाज़ को समझा गया है डायलॉग्स और डिबेट्स के थ्रू. जैसे एक्सप्लिसिट मतलब डीपली जिनको एक्सप्रेस किया गया, इम्प्लिसिट मतलब जिसको डीपली नहीं एक्सप्लेन किया गया. विद द ट्रेडिशन ऑफ सूफीज़म, मतलब ये मिक्सचर है दोनों का, सूफीज़म का भी और योगिक दैट इज़ हिंदुइज्म का भी. रीजन ऑफ अवध में जो था, प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में है ये अवध. हिज लेगेसी वॉज क्लेम्ड बाय सेवरल ग्रुप्स. और उन्होंने जो भी अपनी आइडियाज़ लिखे हैं, लेगेसी का मतलब होता है विरासत में उन्होंने दिए हैं बहुत सारे अगले ग्रुप्स को, मतलब पास ऑन किए दूसरी जनरेशन्स को, जो आज भी कहते वहाँ पर लोग याद करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट एविडेंट इन लेटर डिबेट्स अबाउट वेदर ही वॉज अ हिंदू. और कहते एक डिबेट ऐसा भी था कि लोगों को ये था कि कबीर जी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं. और ये डिबेट का इशू रहा है काफ़ी लंबे समय तक कि वेदर ही वॉज हिंदू और मुस्लिम. बट दिस मोस्ट एविडेंट इन लेटर डिबेट्स कि मैनी ऑफ दीज वर कंपोज फ्रॉम द 17th सेंचुरी. जिनकी जो पोएम्स है वो कहते हैं कि 17th सेंचुरीज ऑनवर्ड्स में 200 ईयर्स आफ्टर कबीर जी की लाइफ टाइम के बाद इनकी पोएम्स को कंपाइल किया गया था. सो ये जो हेजियोग्राफीस है जिन्होंने कबीर जी के बारे में लिखा है वो थे वैष्णवा ट्रेडिशन वाले. उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि ही वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, बट उनका जो ब्रॉटअप किया था, उनको पाला पोसा किसने था, क्योंकि एक गरीब जुलाहा फैमिली थी. जुलाहा होते वीवर्स, दोज आर वीविंग द क्लोथ्स, कि उन्होंने इनको रिवर के किनारे से इनको ये पड़े हुए मिले थे कबीर जी. सो ये मुस्लिम फैमिली ने इनको ब्रॉटअप किया है. इसीलिए कबीर जी के दोहों में आपको दोनों हिंदुइज़्म और उसका दोनों का मिलता है मिक्सचर. और कबीर जी का नाम जो कबीर है वो ऑटोमेटिकली एक अरेबिक नेम है, मुस्लिम नेम है. ठीक है. सो इसीलिए उनकी जो वाणी आपको आइडियाज़ मिलते हैं उसमें आपको दोनों का मिक्सचर मिलता है कबीर जी में, उसमें हिंदुइज़्म का भी और मुस्लिम इस्लामिक का भी. सो हाउएवर द वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू so I think so okay, for today it's enough, and next video I will send with the next topics. So till then, goodbye.